It's always difficult to share our school experiences in a few words. But still, we would want everyone to express themselves at this point of time. So now, I would request my fellow friends of 12B to please come and share their memorable experiences. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Respected Chairman Sir, Manager Sir, Principal Ma'am, teachers and my friends. Good morning to all of you. I am Charu Anand of class 12. I am here to share my experience in the school. When I joined school, I was filled with lots of doubts and was scared of course. But slowly with the time, the bond between all of us became so strong that even Fevicol started feeling jealous. I still remember our small mischiefs in the classroom. Teasing each other, laughing out loud on a silly joke, reading a novel in maths class, eating others' lunch boxes before break, fighting on petty issues, competitions on stages, and crying on each other's shoulders, and lot more, which will always remain in our hearts. These memories are really very valuable for all of us. Dear teachers, like a candle that burns itself to spread light, you gave us everything by working hard day and night. Just like how flowers give away fragrance that they can't smell, you have made our lives blossom in the way words can't tell. I take this farewell speech as an opportunity to thank my teachers who have provided shape to our future and provided shape to our knowledge. I know we are one of the naughtiest classes of the whole school, but we love you all and we will never forget the lessons of books as well as of life that you have taught us. Thank you everyone for making this moment a very special one for all of us. I thank you on the behalf of 12B as we will always remember the time spent in our alma mater. Thank you. Life, a way for different experiences, and school life begins this journey. And we all gathered here to express our feelings to those with whom we spent our whole childhood, who are the reason for making us ready to achieve our dreams. So let me jumble some words and recite a self-composed poem to my teachers. Today my pen tried to express my joy, primary to 12th wing, caught in memories ring. My each word surrender, my every rhyme surrenders. Opportunity I got, in memories I lost. The books I shared, the time you all killed. You extract a legend from me and become a legend for me. Blackboard you offered, you make us winner from Howard. I get this honor to burst my sorrow from every corner. I heard every speech defining memories from peak, but I recite my sorrow to you to achieve my destiny without you. We have problems today, but we will not have you to share. You all are. We have never seen our God. You all are the angels as our Lord. Today every word is given by you. Due to you, we express our world with our view. I got no one at any side. You all gave me the education line. Thank you. Thank you, friends. To describe him in a few adjectives would be typical, for he is a man of intellect, man of wisdom and enthusiasm. Yes, in short, he is a versatile personality. Let's welcome Mr. Naveen Goswami, the Managing Director, to address the gathering. May I request the head boy and the head girl to welcome him with a small token of love.
आप भी सब बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। अभी क्लास 12th ए और 12th बी ने बहुत कुछ बोला स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में, प्रिंसिपल मैडम के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि एक जगह पे स्कूल फेल हो गया। कहाँ फेल हो गया स्कूल? हमारी 1000 कोशिशों के बावजूद सुधरे हुए बच्चे, बहुत सुधरे हुए बच्चे, मैडम हमें बताती हैं कि बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे स्कूल में। तो हमारी 1000 कोशिशों के बावजूद हम आपको ठीक से टाई बनाना नहीं सिखा रहे। आपके बारे में कह रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। When you are officially in a function, क्लासरूम में ठीक है, अगर आप सुबह से शाम बैठे हो थोड़ी सी ढीली कर ली कोई बात नहीं, लेकिन जब आप असेंबली में हैं, स्टेज के ऊपर हैं, एक फंक्शन में हैं, यू हैव टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, योर फैमिली एंड योर स्कूल। टाई कोई मजबूरी नहीं है, कोई फंदा नहीं है। क्यों पहनते हैं टाई? एनीबडी? अच्छी लगती है, स्मार्ट लगते हैं। बिना टाई के स्मार्ट नहीं लगते, बिना टाई के भी स्मार्ट लगते हैं। सो gentleman, that means I am not a gentleman, I am not wearing a tie. We remain in attention, we are focused. Casual और formal wear में क्या फर्क है? यही फर्क है, ठीक है? So next time you wear a tie, if you wear a tie, you wear it properly, otherwise you don't wear it. This is the last lesson. We will not be there to say it again to you, so you have to see. Teachers का क्या रोल है हमारी जिंदगी में? राह दिखाते हैं और कुछ। कैन वी इमेजिन कि अगर टीचर्स ना होते तो क्या होता? कोई टीचर ना होता, बहुत बढ़िया होता, स्कूल ही नहीं आना पड़ता, ऐश ही ऐश थी। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट? नो। सो कैन वी इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट टीचर्स? नो। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. Learning does not stop. I haven't stopped my learning. Principal ma'am has not stopped her learning. We learn from students, from teachers, from experts, from everybody. जहाँ से भी कुछ मिल जाए, जहाँ से भी कुछ मिल जाए। टीचर्स तो मिल जाते हैं बहुत अच्छे। आपका पहला टीचर, आपकी मम्मी, पापा, घर में बड़े लोग, फिर उसके बाद स्कूल आए तो आपको नर्सरी से लेकर 12th तक टीचर्स ही टीचर्स। हर साल 6 नए टीचर, 5 नए टीचर पढ़ाने के लिए आ गए। कुछ टीचर अच्छे थे, कुछ टीचर बहुत अच्छे थे। इसके लिए क्लैपिंग हो जाए। मुझे मालूम है आप सब क्या सोच रहे थे, लेकिन इसमें ठीक बोल दिया। टीचर कभी भी खराब नहीं होता। तो खराब कौन होता है? बच्चे भी खराब नहीं होते। किस्मत, क्या बात है, क्या फिलोसॉफिकल बात करिए। किस्मत खराब होती है। आपने जार देखा है? इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। अगर हम उसमें कुछ सामान डालना चाहें तो क्या करना पड़ता है? खोल के डालना। तो हमारे दिमाग में भी एक ढक्कन होता है, हम खोलते नहीं है। तो whenever you go to a class, आप कोई नई चीज सीखना चाहो, जब तक आप ढक्कन को नहीं खोलोगे वो टीचर अंदर कुछ नहीं डाल पाए। तो हम ढक्कन क्यों नहीं खोल पाते? टाइट हो गया ज़्यादा, जंग लग गया, तो क्यों नहीं खोल पाते? खोलना ही नहीं चाहते। एक आंसर पर जाए, खोलना ही नहीं चाहते। और टाइट होगा, बहुत कष्ट होगा खोलने।
और इस स्टेज तक आते आते जब आप 17-18 साल के हो गए हो तो एक कंफ्यूजिंग स्टेज है, हमें ये नहीं पता कि हम बच्चे हैं या बड़े हैं। कभी तो टीचर कहते हैं कि आप बड़े हो गए हो, सुधर जाओ। माँ बाप कहते हैं यार तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या पता। तो हम बच्चे हैं या बड़े हैं ये नहीं पता। लेकिन जिस भी स्टेज पर अब हो, आप लोगों ने अपने घर वालों की बातें सुन सुन के, टीचर्स की बातें सुन के, आसपास और बच्चों की बातें सुन के एक माइंडसेट बना लिया हमने, और वो माइंडसेट बड़ा फिक्स सा हो गया। हम उसको चेंज नहीं करना चाहते। इसलिए जब भी हमारे मतलब की बात नहीं होती हम उसको सुनना ही नहीं चाहते। ढक्कन खोलने की बात तो बाद में आएगी, ढक्कन तब खुलेगा जब हम उसको खोलना चाहेंगे। आज सुबह आप लोग हवन में बैठे हुए थे, 3 तरह के लोग थे। एक तो बड़े मन से गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, जो हमारे आसपास बैठे थे उनकी आवाज़ें खूब आ रही थी। एक थे जो बेचारे कंफ्यूज कैटेगरी थे, वो कभी कभी बोल देते थे, कभी रुक जाते थे। उनको लगता था कि आस पड़ोस के लोग बहुत देख रहे हैं, पता नहीं क्या कहेंगे। और एक डिसाइडेड थे कि भाई हमने तो बोलना ही नहीं है, कुछ भी हो जाएगा। वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस हवन। आपने किसके लिए बोलना था? मेरे लिए, प्रिंसिपल मैम के लिए, स्टाफ के लिए, स्कूल के लिए, या अपने लिए? अपने लिए। ये बात भी समझ नहीं आई हमें। तो जब भी आप कोई सेशन अटेंड करने जा रहे हैं, कोई क्लास अटेंड करने जा रहे हैं, कोई रिलीजियस सेरेमनी में जा रहे हैं, यू हैव टू डिसाइड कि आपने सीखना है या नहीं सीखना, उसमें इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना। सबसे अच्छी तरह से कौन सीखता है? टीचर समझदार होते हैं ज्यादा? नो। देन भगवान, भगवान को क्या समझा सकते हैं यार? भगवान को कुछ नहीं समझा सकते। कौन? Why is that? She is careful in the class. सबसे अच्छी तरह से एक छोटा बच्चा समझता है। उसके हजारों क्वेश्चन होते हैं, हम तो सोचते रहते हैं पता नहीं हमारा क्वेश्चन इंटेलिजेंट भी है कि नहीं है, बाद में मेरी खिंचाई ना हो जाए इस क्वेश्चन के ऊपर, टीचर ना मार दे कारा। वैसे आजकल तो मारते नहीं टीचर, हमारे टाइम में तो मार भी देते थे। लेकिन जब एक छोटा बच्चा होता है उसको किसी से शर्म नहीं होती, कोई झिझक नहीं होती, वो सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, और जो बात उसको समझाई जाती है उसको वो समझना चाहता है। आप सबके अंदर, मेरे अंदर, टीचर्स के अंदर भी एक छोटा बच्चा होता है जिसको हम दबा दबा के मार देते हैं। तो आज आप स्कूल छोड़ के जा रहे हो, उस बच्चे को मत मरने देना चाहिए, क्योंकि वही बच्चा है जो आपको स्टेज के ऊपर हंसा सकता है, 100 लोगों के बीच में बोलना सिखा सकता है, और वही बच्चा है जो आपकी सीखने को कभी रुकने नहीं देता। राइट और रॉन्ग? एक ही राइट है, 250 बच्चों में से एक राइट है। एवरीबडी थिंक्स दिस इज रॉन्ग। यू कांट एंजॉय योरसेल्फ, यू कांट लाफ फ्रीली। अगर वो बच्चा हमारे अंदर से चला गया कभी भी, बचपन कहते हैं ना अच्छा टाइम होता है, आज आप बोल रहे थे कि स्कूल अच्छा टाइम होता है, मैं तो कहता हूं कि नहीं, बचपन सबसे अच्छा टाइम होता है। हम हमेशा बच्चा बनना चाहते हैं, और जब बच्चा बनते हैं तो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, हमारे कुछ नहीं देखते कि क्या हो रहा है, दुनिया क्या कह रही है, कोई क्या कह रहा है। जो मुझे करना है मुझे करना ही है, अपने लिए करना। अपने उस बच्चे को जिंदा रखिए। अभी आपका बच्चा पूरी तरह नहीं मरा, हमारी स्टेज में आके तो खत्म हो जाता है जरा, फिर हम बार बार कोर्सेज करते हैं उस बच्चे को उठाने के लिए। आपके अंदर अभी भी वो बच्चा है, उसको जिंदा रखिएगा। जिन टीचर्स ने, कुछ टीचर होते हैं, अगर आपको पूरे लाइफ टाइम में 50-60 टीचर्स ने पढ़ाया, आई एम श्योर सबके जीवन में 1-2 टीचर ऐसे जरूर आए होंगे जिन्होंने आपका जीवन बदल दिया, चाहे पढ़ाई की तरफ, चाहे आपके कैरियर की तरफ, चाहे आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर। वो कोई ना कोई ऐसी एक बात कह जाते हैं जाने जाने में जो हमारा जीवन बदल देती है, और वो टीचर हमें हमेशा याद रहता है, जिंदगी भर याद रहता है। उसमें तो सबसे अच्छे टीचर आपके पेरेंट्स हैं। एक टीचर क्या चाहता है आपसे? गिफ्ट्स? नो। देन
टीचर क्या चाहता है? हमारी सक्सेस, तुम्हारी सक्सेस से हमें क्या लेना देना यार? तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे लिए है, हमारे लिए है, पहले तो ये याद रखना। तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे लिए। We feel happy when you're successful. There is no doubt. Teachers want respect from you. Your parents want respect from you. Do we do that? Do we do that? अलग से हटके उल्टी सीधी बातें नहीं करते टीचर्स के बारे में? No. I don't believe that. स्टूडेंट्स कभी चेंज नहीं होते, चाहे वो हमारा टाइम था चाहे आपका टाइम था। हम हमेशा मजाक उड़ाते थे टीचर्स का, बट वी स्टिल रिस्पेक्ट देम। मजाक उड़ाना एक अलग पार्ट है, बट आपकी रिस्पेक्ट उनके लिए खत्म नहीं होनी चाहिए। अभी इन्होंने क्या नाम है था? ऋषभ। अभी ऋषभ ने किस्मत की बात करी है, किस्मत खराब थी तब हम पढ़ नहीं पाए। तो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन लक? बस 3-4 बच्चे करते हो बिलीव, नहीं करते या यू आर नॉट श्योर? ओके। बैड लक होता है क्या? बैड लक होता है? मेरे जीवन में तो सिर्फ गुड लक है, बैड लक कुछ नहीं होता। देयर इज नो सच थिंग एज बैड लक, देयर इज ओनली गुड लक। तो बैड लक किस लिए होता है? जब हम कहीं अटक जाते हैं, 2 नंबर से रह गए एग्जाम में, पढ़ नहीं पाए रात को, और कई मुश्किलें जो आप लोगों के जीवन में आती हैं, हमारे जीवन में तो बहुत सारी आती हैं। हम कहते हैं यार किस्मत खराब है, सडनली वो किस्मत अगले दिन ठीक हो जाती है। तो बैड लक क्या होता है बेसिकली? सॉरी, एनीबडी? कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा? ढक्कन खुले हुए ना सबके, पीछे तक आवाज आ रही है? So what is bad luck? गुड लक तो हमें सब पता है, जब हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं उस दिन बहुत अच्छी गुड लक होती है। सक्सेस से थोड़ी सी दूर रह जाए। अभी तो सक्सेस और फेलियर आया ही कोई नहीं आपकी जिंदगी में, अभी थोड़ी जल्दी है सक्सेस और फेलियर की। अगर आप एक चीज मानकर चलोगे कि जिंदगी में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, तो जब हमारे नंबर कम आते हैं वो भी अच्छे के लिए ही आते हैं। सो दैट वी लर्न कि इसमें मेहनत कम रहेगी थी हमारी। कोई भी और रुकावट आती है जिंदगी में तो वो यही सिखाने के लिए आती है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। एक अकबर बीरबल की स्टोरी है। एक बार अकबर जी जंगल में शिकार कर रहे थे तो गलती से तलवार से उनका अंगूठा कट गया। उधर से बीरबल जी ढूंढते जानते आए तो अकबर ने कहा कि यार मेरा अंगूठा कट गया है। उसने कहा कि तो बड़ी अच्छी बात है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को बड़ा गुस्सा आया, आग उगला हो गया। उसने कहा सिपाहियों को जाके इसको राजमहल में ले जाके और उल्टा टांग के रात भर कोड़े मारो और सुबह फांसी चढ़ा देना। तो सिपाही उसको ले जाते हैं। राजा जी अपना अकबर जी जो है वो आगे जंगल में चलना शुरू करते हैं तो वो अपने सिपाहियों से अलग हो जाते हैं। तो इतने में कुछ आदिवासी आ जाते हैं। आदिवासी उसको राजा को पकड़ लेते हैं और अपनी जगह पे ले जाके उसको उल्टा टांग के उसकी बलि की तैयारी कर देते हैं। ढोल नगाड़े करके और हो हा करके बलि की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इतने में जो उनका चीफ होता है वो देखता है कि इसका तो अंगूठा ही नहीं है। तो कहता है कि भाई इसकी तो देवी को बलि नहीं चढ़ सकती। तो वो राजा को छोड़ देते हैं। अब राजा भागा भागा जाता है अपने राजमहल। वहाँ देखते हैं बीरबल उठकर अटका हुआ है, अधमरा सा उसकी पिटाई हो रही होती है और उस समय उसको फांसी चढ़ाने वाले होते हैं। तो बीरबल को तो आके कहता है कि बीरबल तुमने ठीक कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा अंगूठा कट गया तो मैं मरने से बच गया, लेकिन ये बता कि तू रात भर पिटा, इसमें क्या अच्छा होगा? तो बीरबल कहता है महाराज अगर मैं आपके साथ होता तो आपकी जगह मैं बलि चढ़ जाता। सो देयर इज अ गुड इन एवरीथिंग, नोथिंग लाइक बैड लक इन योर लाइफ। अगर ये मानकर चलोगे तो जिंदगी बहुत सुखद हो जाएगी। राइट?
ऐसे बहुत सी टर्निंग्स आती है हमारी जिंदगी में जहाँ पे हमें लगता है कि यार ये तो लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग एनीमोर, बहुत दुखी हो जाते हैं, पर वो भी कुछ ना कुछ आपको एक अच्छा लेसन देके जाएंगे। सक्सेस फेलियर की भी उन्होंने बात की थी। व्हाट इज सक्सेस एंड व्हाट इज फेलियर? You pass your class 12th exams with flying colors, that is success? नहीं किए तो फेलियर। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि टीचर या तो अच्छे होते हैं या बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये अच्छे नहीं है, तो इसकी पढ़ाई मेरी समझ में तो नहीं आती, तो हम मानते हैं क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। This is our perspective. So even if you score 80% in your class 12, is that success or failure? यही आंसर कर रहा है यार, और कोई बता दो। सक्सेस है। क्यों? एडमिशन तो कहीं नहीं मिलेगी। एक बात बताइए कि जो लोग, अभी तक आपने सक्सेस नहीं बताया क्या? किस्मत, फिर से किस्मत आ गई। थोड़ा सा ढक्कन और खोल दो यार। ड्रीम्स को अचीव करना, दैट इज सक्सेस। सक्सेस आई प्रिज्यूम इज वर्किंग फॉर अ गुड कंपनी, हैविंग अ गुड कंपनी ऑफ योर ओन, हैविंग योर ओन गुड बिजनेस, दैट इज सक्सेस? नो। हैप्पीली मैरिड लाइफ, दैट इज सक्सेस? नो। कान पकड़ रहा है बेचारा। That is also not success. So what is success then? जो लोग अच्छी कंपनीज में काम करते हैं क्या वो सिर्फ आईआईटी से जाते हैं? कितने परसेंट जाते हैं आईआईटी से या एसआरसीसी से या जो भी और ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है एफएमएस से जाते हैं? Don't look at her. That is a question for everybody. How many percent? Very small. Maybe 5% maybe. बाकी 95% कहां से आते हैं? कहीं से, सारी जगह से। So how do you reach that job? Hard work. This is an important question for you, which you have not thought. Has anybody thought where he or she is going to work in 10 years time, 5 years time? आज तो सिर्फ बोर्ड्स ही बोर्ड्स हैं, राइट? अगर आप सोचोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे यार? अगर आप सोचोगे नहीं कि कहाँ जाना है, मुझे किस कंपनी में काम करना है, मुझे बैंक ऑफ अमेरिका में काम करना है या माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है या गूगल में काम करना है या टाटा में काम करना है या रोहिणी की किसी कंपनी में काम करना है, जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक जा नहीं पाओगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम तो कर ही नहीं सकते। जब भी आईआईटी की बात होती है सब उसकी तरफ इशारा करते हैं। That means nobody else is ready even to try. They have decided that they cannot do it. Maybe IIT नहीं जा सकते, that may be true, but can you still get a good job? Can you still have a good career? ये तो सोच सकते हैं, या वो भी नहीं सोच सकते। अगर IIT नहीं गए तो उतनी अच्छी जॉब तो मिल ही सकती है। Yourself told us only 5% people go to these companies from IITs or branded institutes. बाकी सब तो IPU से और DU से और MDU से ही जाते हैं। तो कितने बच्चे ये मानते हैं कि हम अच्छी कंपनी में काम नहीं कर सकते? हैं? सब मानते हैं कि अच्छी कंपनी में जा सकते हैं, सब लोग मानते हैं सर। मैं भी आपको ना एक सोचने के ऊपर एक डेमो करके दिखाता हूं। सब लोग अपनी आंखें बंद करो और जो मैं बोलूंगा वही करना। आंखें बंद करो आप सब लोग, जो मैं बोलूंगा वही करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अब सब लोग अपनी आंखें बंद करें। मैं अपनी मम्मी के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं बिल्कुल भी अपनी मम्मी के बारे में नहीं सोचूंगा। अपनी मम्मी की फोटो अपनी आंखों के सामने भी नहीं आने दूंगा।
बिल्कुल कतई कुछ भी हो जाएगा मैं मंजिल के बारे में नहीं सोचूंगा। आई विल नॉट थिंक अबाउट माई मदर। ओपन योर आईज। कितने लोगों ने माँ के बारे में सोचा? आई थिंक एवरीबडी। बाकी वो शर्मीले हैं जो हाथ खड़े नहीं करते। आपने नहीं सोचा? किसके बारे में सोचा? कुछ था ही नहीं दिमाग में। दैट इज वेरी गुड। हमारा जो दिमाग है ना वो बातों से नहीं करता। मैंने कहा मैं अपनी मम्मी के बारे में नहीं सोचूंगा। नहीं कैसे सोचेंगे? आपने नहीं इमेजिन नहीं। नो यू कैन नॉट इमेजिन। उसमें एक ही शब्द समझ आया मम्मी, उसी को सोचना शुरू कर दिया। आपको 14 साल में पता नहीं समझ आया कि नहीं आया कि हमारा माइंड तो विजुअल्स पे काम करता है, वर्ड नहीं समझता है। SRCC IIT नहीं समझता है, विजुअल्स पे काम करता है। तो अगर आपने कुछ चीज़ विजुअलाइज भी करनी है अपनी लाइफ के बारे में कि मैं 10 साल में यहाँ जाऊँगा, आपको अपने आप को उस टूटी फूटी सूट के अंदर और उस कंपनी के बाहर विजुअलाइज करना है। देन योर होल सिस्टम विल स्टार्ट वर्किंग। You have heard about the law of attraction, manifestation, the secret, वो सब में नहीं जाएंगे। उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट, only visualization works for you. So whatever you want to become in 5 years time, 10 years time, start visualizing. If you want to be a graduate from SRCC, अगर थोड़ी सी उम्मीद भी है तो you start yourself visualizing as a graduate from SRCC. उस कोट में हैट के साथ SRCC के बाद डिग्री लेते हैं, ना कि शब्दों में। ठीक है? पर अगर आपके अंदर ये जरा सा भी विचार है कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग सच में नहीं कर सकता। आपके टीचर्स ने भी आपको 14 साल यही सिखाया है कि यू कैन डू इट। दिस इज ऑल वेरी इजी, यू कैन डू इट इफ यू ट्राई। If you don't try, you cannot do it. You want to wake up at 6 AM? आपका दिमाग 1000 बहाने देगा, यार क्या फायदा उठने का। नींद तो 8 घंटे की होनी चाहिए कम से कम। आज तो सोलो कॉलेज आके पता नहीं सो पाएंगे नहीं सो पाएंगे। बट इफ यू रियली पुट योर माइंड, तो बिना अलार्म क्लॉक के 6 बजे उठ जाते हैं। इफ यू डिसाइड कि नहीं मैंने तो उठना ही उठना, तो आप उठ ही जाओ। हाथी का बच्चा देखा कभी? बेबी एलिफेंट बड़ा नहीं देखा? टीवी में सही, चलो टीवी में। इसको कैसे बांधते हैं हाथी को? चेन से नहीं, सूर तो कभी नहीं बांधते। कैसे बांधते हैं? बच्चे के हाथी के बच्चे को कैसे बांधते हैं? सॉरी क्या कह रहे हो? हाथी के बच्चे को उसके पिछले पैर में पतली सी रस्सी बांधते हैं और एक पोल के साथ बांध देते हैं। बच्चा बेचारा कोशिश करता है, रस्सी तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, तो जब बड़ा होता है तब भी उसको उसी रस्सी से बांधते हैं। अगर हाथी अपनी ताकत लगा दे तो उस पोल को उखाड़ सकता है, लेकिन वो रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? माइंडसेट है। ऐसे आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है अपने पेरेंट्स की बातें सुन सुनकर, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, और माइंडसेट बना लेते हैं कि भाई हमारे बस में नहीं है। यही वो ढक्कन खोलने वाली बात है। इस ढक्कन को खोल के जो भी इस तरह की आपकी मान्यताएं हैं उनको अगर आप बाहर निकालोगे तो यू कैन ऑल्सो डू इट। अंडरस्टूड? तो हाथी नहीं बनना हमने जो ये मानता है। एक बार ट्राई करके देखो, शेयर पे बन जाओ। एक बार ट्राई करके देखो, पोल को धक्का मार के देखो, पोल ही हाथ में आ जाएगा। हमारी आपकी उम्र में बहुत लोग बहुत सी सलाहें देते हैं और हम लोग धर्म संकट में फंस जाते हैं कि यार क्या करें क्या ना करें, किसकी बात सुने किसकी ना सुने। जिंदगी भर तो हम जितनी गाड़ियाँ मिली सबको खोल खोल के ठीक करते रहे, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस घर के तबाह कर दिए, स्मार्टफोन खोल दिए, और एंड में पिताजी कहते हैं सीए बन जाओ। तो हमने सुननी सबकी है,
पेरेंट्स की खास करके, और मन की करनी। मन की कैसे कर लेंगे? मन की कैसे करेंगे? जहाँ ऋषभ एडमिशन लेना वहीं मैं पढ़ जाऊँ। ये मन की करते हैं हम प्रैक्टिकली। जो कॉलेजेस के अंदर हमने देखा है, बच्चे ये करते हैं कि जहाँ मेरा फ्रेंड जा रहा है मैंने भी वहीं जाना है, वही कोर्स अच्छा है, वही कॉलेज अच्छा है। इज दैट राइट और रॉन्ग? दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू मेक इन योर लाइफ। मन की आवाज से मेरा मतलब है कि आप लोग क्या चाहते हो वाकई में करो, ये आपको पता होना चाहिए। आप सलाह सब लोगों से लो, अपने टीचर से लो, कैरियर काउंसलर से लो, गूगल बाबा से लो, जहां से मर्जी लो, लेकिन एंड में यू डिसाइड व्हाट जॉब और व्हाट कैरियर इज गुड फॉर यू। बिकॉज जब तक आपका मन नहीं लगेगा उसके अंदर, कुछ नहीं मिलने वाला। कर तो लोगे कोर्स, सीए भी कर लोगे, या उसके बाद जॉब भी मिल जाएगी, बट दैट सेटिस्फैक्शन विल नेवर बी। तो ये जॉब हैज टू बी फन फॉर यू। जो काम करके आपको मजा आए वो ही चुनना जरूरी है। पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, वो कोई गलत बात नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं 15 साल पहले मेरे भाई ने सीए करके आज बड़ा सक्सेसफुल ऑफिसर है, विच इज राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट यू हैव टू थिंक कि आप में सीए बनने के गुण हैं भी सही कि नहीं है, या यू रादर बी अ गुड आरजे। सो व्हाइल मेकिंग अ कैरियर चॉइस, बी वेरी केयरफुल। मन की आवाज वो नहीं है जो मोदी जी रेडियो में बोलते हैं। मन की आवाज वो है जो हमारे ज़मीर से आती है, और वो आवाज कभी भी गलत नहीं होती। कोई भी चॉइस करने के लिए, सिर्फ कैरियर के लिए नहीं, कोई जॉब चेंज करना है, कल को अपने लाइफ पार्टनर ढूंढना है, कुछ भी करना है, आपके मन की आवाज सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपने प्रेयर करी, इतनी शक्ति, उसमें एक लाइन आती है, किसी ने इस प्रेयर को समझा है कभी क्या? या बस 14 साल से बोलते गए, कुछ होठ हिलाते रहे, कुछ बोलते रहे, और प्रेयर पूरी हो गई। प्रेयर इज नॉट अ फॉर्मेलिटी। आपको चाहे एक ही प्रेयर समझ आए पूरे 14 साल में, कोई बात नहीं। फूल बांटे खुशियों के, सबका जीवन कर दे मधुबन। इसका क्या मतलब है? हिंदी के विद्यार्थी रहे हो 10वीं क्लास तक, हमें जो कुछ भी जीवन में चाहिए, चाहे वो गुस्सा चाहिए, चाहे वो नफरत चाहिए, चाहे वो पैसा चाहिए, चाहे वो खुशियां चाहिए, वही हमें जीवन में बांटनी चाहिए। इज दैट पॉसिबल फॉर यू? हमने कभी किया ऐसा? हमने कभी कुछ ऐसा किया कि कोई खुश हो जाए हमसे बहुत ज्यादा? डिड वी मेक श्योर कि रोज एक आदमी खुश हो जाए हमसे, चाहे वो हमारी मम्मी क्यों ना हो, चाहे वो कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो स्कूल का? कभी किसी की मदद करने की कोशिश करिए, अनजाने में नहीं, ऑन अ डेली बेसिस। इवन इफ यू स्पेंड 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, पैसों की बात नहीं है। आपको 500 रुपये पॉकेट मनी मिलती है, कोई बात नहीं। अगर आपने 10 रुपये भी खर्च दिए तो बहुत है। इट इज नॉट अबाउट द क्वांटम ऑफ मनी, इट इज नॉट अबाउट हाउ मच हैप्पीनेस, हाउ यू आर गिविंग, बट आर यू डूइंग एनीथिंग फॉर एनीबडी? किसी को खुश कर रहे हो? तो अपने अंदर से सोचना शुरू कर दिया, यार ये कहाँ की बात आ गई है, कभी सोचा ही नहीं, कभी कोशिश ही नहीं करी। इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट? इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट? इतना यस है। अगर हम सोचते नहीं तो ये यस कैसे हो गया? सो वट एवर यू गिव कम्स बैक टू यू। आप तंग करोगे किसी को, अपने फादर मदर को, कोलीग को, बहन भाई को, इट विल ऑल कम बैक टू यू मैनी फोल्ड। बुरा करोगे तो बुराई वापस आएगी, अच्छा करोगे तो अच्छी बुराई वापस। थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बात है, पर आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अपना एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। तो इस बारे में विचार जरूर करना कि 10 साल में हम क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। अगर खुशी है तो खुशी तो आज से ही शुरू कर सकते हैं, खुशी के लिए 10 साल वेट करने की जरूरत नहीं है कहीं। हमने अपना पूरा एफर्ट करना है, उसके बाद जो भी हमें रिजल्ट आएगा, जो भी जहाँ भी जिस कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, डू योर बेस्ट एंड चेज योर ड्रीम।
जो मैंने आपको बताया है कि विजुअलाइज व्हाट यू वांट टू डू। लेकिन एक बात जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो ज़रूर याद रखना कि कभी भी कुछ अकबर की कहानी से क्या सीखा था? जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ लोग तो जाग रहे हैं तुम्हारे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का मैसेज खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।